اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، سچ کے حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے، آئندہ کل یعنی جمعرات کو ہمارا بیان ہوتا ہے لائیو۔ ابھی تو طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل میں انٹرنیشنل نیوز بھی بول نہیں پایا، صرف نیشنل نیوز بڑی تکلیفوں کے ساتھ میں نے بولا تھا۔ ابھی بھی آواز کھلا نہیں ہے کیونکہ لگاتار میرے پروگرام شروع ہے، بیانات شروع ہے۔ آئندہ کل کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آواز کو کھول دے، تو آئندہ کل کا بیان ہوگا جس کا عنوان ہوگا، اگر طبیعت صحیح ہو جاتی ہے تو اس کا عنوان ہوگا آئندہ کل کے بیان کا، صدقے کی اہمیت، فضیلت، صدقہ کیسے مصیبتوں اور آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ کیسے دینا چاہیے، کن کو دینا چاہیے، کب کب دینا چاہیے۔ تو بہت اہم معلومات انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ یہ بیان آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئندہ کل یعنی 12 جنوری کو رات 8:30 بجے آپ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور سنیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر ریاست آسام سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آسام میں 201 مسلم خاندانوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ لکھم پور میں سخت سیکورٹی کے درمیان 70 بلڈوزر نے 200 ایکڑ زمین پر انہدامی کارروائی کی، اور آج 250 ہیکٹر پر بلڈوزر چلائے جائیں گے۔ بتایا جا رہا ہے آسام میں کہ 299 خاندان مزید متاثر ہوں گے۔ آسام کے ضلع لکھم پور میں تقریباً 70 بلڈوزرز نے منگل کے دن محکمہ جنگلات کی 200 ہیکٹر زمین کو مسطح کر دیا۔ 201 کنبے متاثر ہوئے، جن میں زیادہ تر بنگالی بولنے والے مسلمان ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تقریباً موضع مغلی میں 200 سول عہدیداروں کے علاوہ پولیس اور CRPF کے 600 جوان تعینات کیے گئے۔ وہیں پر آسام کی ایک اور خبر آ رہی ہے کہ آسام کے کریم گنج میں بجرنگ دل کے کارکن کا قتل ہوا، علاقے میں کشیدگی پھیل گئی، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور پورے علاقے میں دفعہ 44 نافذ کر دی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کریم گنج میں بجرنگ دل کے ایک 16 سال کے یوا کے قتل کے دوسرے دن کسی بھی غیر معمولی واقعے کا انسداد
रोकने के लिए कुछ इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर जोशी मठ के हालात को लेकर आ रही है। जोशी मठ में आप जानते हैं कि ज़मीनों में, घरों में दरारें पड़ रही है, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों लोगों की जान को ख़तरा है। अब खबरें आ रही है कि जोशी मठ में 2 लग्जरी होटल गिराने के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी हुई, इन्हिदामी कार्रवाई रोक दी गई। 678 इमारतों पर, बिल्डिंगों पर हुकूमत ने रेड क्रॉस का निशान यानी खतरे का निशान लगा दिया। साइंटिफिक स्टडी मुकम्मल कर ली गई। कई इलाके वहां पर जोशी मठ में सील कर दिए गए। सुप्रीम फौज अलर्ट हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फौरी तौर से समाअत करने से इनकार कर दिया। जोशी मठ के 2 लग्जरी होटल गिराए जाने के खिलाफ गुज़िश्ता कल ज़बरदस्त एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। पूरे इलाके की साइंटिफिक स्टडी मुकम्मल हो गई है। कुछ इलाके पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। नाज़रीन, रियासत मध्य प्रदेश के खंडवा से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ISIS से राब्ता होने के इल्ज़ाम में अब्दुल रकीब कुरैशी 33 साल जिसकी उम्र है, अब्दुल वकील के लड़के हैं अब्दुल रकीब कुरैशी, इनको ISIS से मुंसलिक वाबस्ता होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मगरबी बंगाल की खुसूसी टास्क फोर्स ने मध्य प्रदेश के खंडवा से दहशतगर्द तंजीम ISIS से कनेक्टेड होने के इल्ज़ाम में एक नौजवान अब्दुल रकीब को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इसे अपने साथ कोलकाता ले गई है। आइए नाज़रीन, उत्तराखंड के हल्द्वानी की एक बड़ी खबर आ रही है। तुगड़िया जो मुल्क का एक यूं समझिए कि जहरीले सांप की हैसियत रखता है, जो हमेशा जहर उगलता रहता है, उस तुगड़िया ने कहा कि मुसलमानों की आबादी रोकी जाए और आईन हिंद, दस्तूर, संविधान में तब्दीली होनी चाहिए। और ये भी कहा कि हल्द्वानी में किसी हिंदू घर को खाली करना पड़ा तो हम मदद के लिए खड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद के बानी डॉक्टर परवीन तुगड़िया ने हल्द्वानी का दौरा किया, जहां कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान परवीन तुगड़िया ने कहा कि हिंदुओं के लिए खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में मुल्क में आबादी कंट्रोल कानून लाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आबादी कंट्रोल कानून लाकर मुसलमानों की आबादी को रोकने के लिए काम करे, वरना भारत के हिंदू का मुस्तकबिल खतरे में पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि 2 से ज़्यादा बच्चे रखने वालों को किसी किस्म की सरकारी सहूलत नहीं मिलनी चाहिए। ये भी कहा कि जो लोग 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उन्हें सरकारी नौकरियों के अलावा वोट देने से भी महरूम किया जाना चाहिए। ऐसे में भारत की आबादी 2 साल के अंदर पूरी तरह बराबर हो जाएगी। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए नाज़रीन, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, भारत जोड़ो यात्रा जिसमें लाखों कदम हर रोज़ राहुल के साथ जुड़ रहे हैं और भारत जुड़ता चला जा रहा है। नफ़रतों के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि भारत जोड़ो यात्रा गुज़िश्ता कल अमृतसर में दाखिल हुई और राहुल गांधी ने अमृतसर के मशहूर गोल्डन टेम्पल पहुंचकर कीर्तन भी सुना। कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी ने मंगल को पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले दरबार साहिब में हाजिरी दी। राहुल गांधी का अमृतसर का दौरा तय नहीं था, लेकिन पीर की रात उनका शेड्यूल तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद वो गुज़िश्ता कल सुबह अमृतसर पहुंच गए। पंजाब कांग्रेस के सदर अमरिंदर सिंह राजा और अपोजिशन लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया। हवाई अड्डे पर ही राहुल का रिवायती पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस लीडरों के साथ दरबार साहब पहुंचे। वहां राहुल गांधी ने सर झुकाकर कीर्तन भी सुना। आइए दिन महाराष्ट्र के एक बड़े कदआवर नेता जितेंद्र आव्हाड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जितेंद्र आव्हाड ने दो टोक अंदाज में वीडियो में पुलिस को जमकर लताड़ा। वीडियो में पुलिस को जमकर लताड़ते हुए और दो हाथ की धमकी देते हुए भी जितेंद्र आव्हाड नजर आ रहे हैं।
जितेंद्र औहार ने कहा कि मुझ पर इस्मत दरी रेप का झूठा FIR दर्ज करने की साजिश रची जा रही है। मुझे इस्मत दरी के झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची जा रही है और उन्होंने कहा कि ये साजिश भी वही लोग रच रहे हैं जिन लोगों ने मुझ पर जिनसी दस्तदराजी का झूठा FIR दर्ज कराया है। जितेंद्र औहार ने वीडियो में पुलिस को जमकर निशाना बनाया, उस पर तनकीद की और उनको बेबस करार दिया, नीज मजबूरन कानून को हाथ में लेने की धमकी तक जितेंद्र औहार ने दे डाली। वीडियो में कुरान मजीद और भगवत गीता के नुस्खे हाथ में लिए हुए जितेंद्र औहार ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि कुछ बाअसर लोग उनकी आवाज़ दबाने और उनका सियासी कैरियर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एक खातून को इस्तेमाल करके उन पर जिनसी दस्तदराजी का फर्जी मुकदमा दर्ज करा के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होता तो वो बर्दाश्त कर लेते, मगर इस घिनौने इल्ज़ाम से वो बुरी तरह टूट गए हैं और आखिरी सांस तक इस गम से उभर नहीं पाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त झारखंड से एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, झारखंड की 55 मुस्लिम तंजीमों ने आसान निकाह मुहिम शुरू की और शादियों में डीजे, नाच गाना, रक्स और आतिशबाजी पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। झारखंड के जिला धनबाद में कुल 55 मुस्लिम तंजीमों ने शादी की बारात के जुलूस में डीजे, पटाखे और नाच गाने पर सख्त पाबंदी का ऐलान करते हुए खबरदार किया कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो कोई भी काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा। ये फैसला तंजीम उलमाए अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम वासेपुर में होने वाले मुश्तरका इजलास में इत्तेफाक़ राय से किया गया और पूरे शहर पर पाबंदी आयद कर दी गई। मौलाना गुलाम सरवर कादरी ने कहा कि एक मुहिम निकाह आसान करो शुरू की गई है और इसे धनबाद के पूरी रियासत में चलाया जाएगा। आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने बताया कि पतंग का जो मांझा है, नायलॉन के मांझे पर पाबंदी है, लेकिन सिर्फ कागजात पर है, सिर्फ कागजात पर बैन है। मार्केट में धूम से नायलॉन का मांझा बिक रहा है। अभी खबर आई है कि एक 5 साला बच्ची के गले में पतंग का धागा फंस गया, गला कट गया, 26 टाके उसे लगाए गए हैं। नागपुर में एक 5 साला लड़की की गर्दन पतंग के धागे से कटने के बाद 26 टाके लगाने पड़े। ताज़रात हिंद के अलावा पुलिस ने इस मामले में माहौलियाती एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक नागपुर के फारूक नगर की रहने वाली 5 साला शहनाज हफ्ते की शाम अपने साथियों के साथ खेल रही थी कि पतंग की डोर से उसकी गर्दन कटी। दोस्तों ने मांझा खींचकर उसकी मदद करने की कोशिश की तो चोट और मजीद बढ़ गई। जी हाँ, ये मांझा एक पतंग की तार है जो नायलॉन पॉलीमर से बनी है, जिसे पाउडर, गिलास और चिपकने वाले मादे से मजबूत किया जाता है। इस मांझे पर पाबंदी है मगर सिर्फ कागजात पर, और ये हजारों परिंदों के साथ सैकड़ों इंसानों की जान ले रहा है। अभी आज से 5 दिन पहले मैंने बाकायदा गुजरात में इसके खिलाफ खुद ने मानिकपुर में बयान किया हूँ। नाज़रीन, आइए बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की। आप जानते हैं कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे और बागी बगावत करने वाला ग्रुप शिंदे ग्रुप, इनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि शिवसेना किसकी है। जी हाँ, शिवसेना बरहम हो गई और शिवसेना ने कहा कि अजीब बात है, तारीख पर तारीख हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। 16 असम्बली अरकान की नाअहली पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत तक टाल दिया है। अदालती कार्रवाई पर रियासत के कायदीन में मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। कानून साज काउंसिल में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और शिवसेना के MLC राम अंबादास दानवे ने इस सूरत हाल पर रिएक्शन जाहिर करते हुए फिल्मी अंदाज में कहा कि तारीख पर तारीख तो मिल रही है पर इंसाफ नहीं मिल रहा है। खैर, उद्धव ठाकरे का पार्टी सरबराह का ओहदा गैर कानूनी है, ऐसा इलेक्शन कमीशन में शिंदे ग्रुप ने दलील दी है और कहा कि शिवसेना हमारी है।
मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन में शिवसेना किसकी है, इसके लिए शिंदे ग्रुप और ठाकरे ग्रुप में मुकाबला जारी है। बहसो तकरार का सिलसिला जारी था जो अभी खत्म हुआ है। शिंदे ग्रुप की तरफ से एक अहम दलील दी गई और ये कहा गया कि शिवसेना हमारी है। अगले दिन कर्नाटक से एक और नीच नाटक की खबर आ रही है, और नीच नाटक कर्नाटक में कौन कर रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वहाँ हुकूमत है बीजेपी की, और बीजेपी की जहाँ हुकूमत है वहाँ पर शरारतें इंसानों को परेशान कर रही है, माहौल को ख़राब कर रही है। इस वक्त खबर आ रही है कि कर्नाटक में एक मकान को मस्जिद बनाने पर बीजेपी और हिंदू तंजीमों ने एतराज़ जताया। वक्फ बोर्ड के हवाले की गई इबादतगाह को एक हफ्ते के अंदर हटाने की वार्निंग दी। ये इलाका असम्बली हल्का बेलगावी रूरल में आता है। कारकुनों ने इस सिलसिले में मकामी लोगों के साथ मीटिंग की और मस्जिद को खाली कराने के लिए बीजेपी के एक्स विधायक संजय पाटिल की क़यादत में तहरीक शुरू की। पाटिल ने मुतालबा किया कि ज़िला हुक्काम और कारपोरेशन के चाहिए कि वो मस्जिद को खाली कराएं, और एक हफ्ते की डेडलाइन उन्होंने दी है। उन्होंने मस्जिद हटाने के लिए एक हफ्ते की डेडलाइन दी है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बीजेपी और हिंदू तंजीमें आतंक मचाएगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।